دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی حنفی بریلی بھائیوں، دیگر بہتریوں، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جماعتیہ اہل حدیث بدعت و خرافات کا وہ گلدستہ ہے جس کی بدبو سے آج پوری دنیا کے مسلمان سے سنی حنفی بریلی سب پریشان ہیں، اور یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث پر ہے، حالانکہ ان کا نہ قرآن سے عمل ہے نہ تو حدیث سے عمل ہے۔ فتاوی ثانیہ میں جو ہے ان کے عالم اللہ امرتسری صاحب نے صاف لکھ دیا ہے کہ صوفیہ کے قول کو حجت نہیں بنایا جائے اور اس کا جو ہے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا، لیکن یہ بار بار صوفیہ کے قول کو لے کر آئیں گے اور کہیں گے دیکھو انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے وہ لکھا ہے۔ اچھا، حوالہ دینے پر جب کہو کہ بھائی فلاں نے ایسا کہا ہے تو کہتے ہیں ہم ان کے مقلد تھوڑی نہ ہیں، ہم تکلیف تھوڑی نہ کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اللہ، یعنی کہ اپنی یہ برابری ایک مجتہد کی کیٹیگری میں کر دیتے ہیں، جسے مجتہد کہا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مسائل کو اخرج کر کے اور عوام کے سامنے رکھتا ہے، مجتہد اس کی برابری کرنے لگتے ہیں۔ ہر جاہل ناخوان جتنے ہیں یہ سب مسلم بن جاتے ہیں۔ یہ عبدالرحمان صاحب، آپ مجھے یہ ٹھیک ہے، آپ قرآن سمجھ گئے ہوں گے، پورا آپ ایسا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن میں کیا ہے ایسی ہوتی ہے جس سے عمل کیا جائے، جس سے عمل کیا جائے۔ اتنا ہی پوچھنا تھا، جیسے کتے کے دم کے اوپر پیٹرول ڈال دو، کتا بھاگتا ہے تو ویسے ہی عبدالرحمان صاحب فون کر کے اور 100 کی اسپیڈ سے راہ پا رکھا ہے، اختیار کر لیا۔ یعنی ان کا صرف جھوٹا دعویٰ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اور جھوٹا یہ مطلب مستحد کے برابری کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک الزام اور آتا ہے گھڑی گھڑی کہ بھائی بریلوی گالی دیتے ہیں، تو جب جہاں گالی کا ماحول ہوگا وہاں گالی ہوگا، وہ گالی کا جواب گالی سے ہی دیا جائے گا۔ حالانکہ عبدالرحمان صاحب نے مانا کہ ہماری بھی جماعت میں ہیں جو لوگ گالی دیتے ہیں، اور جو ہے بہت سے ایسے لوگ خرافاتی ہیں، انہوں نے مان لیا۔ چلیے، میں یہ ان کا بڑکپن مانتا ہوں اور ایمانداری مانتا ہوں کہ اتنا تو انہوں نے مان لیا۔ اور عبداللہ صاحب کے اوپر بھی الزام لگا رہے تھے گالی کا، بھائی جہاں لوگ گالی دیں گے تو لوگ گالی ہی دیں گے، آپ اچھے سے بات کریں، اچھے سے بات کریں۔ تو تمام سامنے حضرات کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فراڈ بازی عیاری مکاری سے بچیں، یہ بہت ہی بڑے چور ہیں، ایمان چور ہیں۔ یہ ایسے ایمان آپ کا چوری کر لیں گے کہ آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوگا۔ یہ دجال کے فالوور ہیں، دجال جو ہے دجال کے یہ حواری ہیں، آنے والے وقت میں ان کے ہی ساتھ یہ رہیں گے۔ تو میں یہ آڈیو اس کے آپ سنیں اور دیکھیں عبدالرحمان صاحب کس طرح کی جو ہے یہ راہ فرار اختیار کیے اور جو ہے معاملہ کو آدھے ادھورے میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسرا آڈیو لے کے پھر ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لوگوں کے سامنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کون؟ عبدالرحمان صاحب بول رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، یہ عبدالرحمان صاحب، یہ عبداللہ بھائی کا کیا معاملہ ہے آپ کا؟ کوئی معاملہ نہیں، کیا ہو گیا؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں، میرا نام انسان علی ہے۔ اچھا، ہاں، تو میں سنا ہوں کہ بھائی آپ یہاں وہاں گروپ میں ایڈ کر جو ہے ان کو پریشان کرتے ہیں اور سب جو ہے نہیں، بلکہ وہ خود گروپ میں ایڈ کر کے پریشان کرتے ہیں۔ انہوں نے کل انہوں نے ایک گروپ بنایا، مجھے ایڈ کیا، میں تو ان سے بہت پیار محبت کی باتیں کرتا ہوں، وہ بہت گالیاں دیتے ہیں اہل حدیث کو۔ آپ نے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں، میں نے ان سے کہا بھائی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو ہمیں اپنے مسلک کے بارے میں جو کچھ ہو بتاؤ، پیار محبت سے بتاؤ، لیکن وہ اتنی گالیاں دیتی، یہاں تک کہا کہ بمبئی میں اہل حدیث مسجد میں عورتیں جاتی ہیں، رنڈیے ہیں وہ،
बताओ। ऐसे ऐसे जुमले हैं कि आप सुन नहीं पाएंगे। हमने कहा भाई आप कुछ बात न कर देखिए, सको तो गाली का जो मामला है तो गाली का मतलब कोई अब्दुल्ला भाई ही नहीं है, आपके अहले हदीस हजरात भी बहुत सारे हैं जो गाली गलौज करते हैं। हाँ होते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन अपना अपना तरीका है। चलिए पूछिए क्या बात करना चाहते हैं, हम आपका शिकवा शिकायत दूर कर देंगे। कौन पूछना चाहते हैं? आप जैसे अब्दुल्ला भाई के जो मामला है आपका, जो भी नहीं, बात मेरा कोई मामला नहीं है। पूछना चाहते हैं, अरे भाई सवाल ग्रुपों करना में चाहते हैं, कुछ बात करना नहीं चाहते नहीं हैं, नहीं बताइए। ग्रुपों में ऐड होते हैं लोग और एक दूसरे से बात करते हैं और अपने मसलक के बारे में बताते हैं। दूसरे मसलक की कोई बात होती है वो उसको बताते हैं भाई आप ये गलत है ये सही है। बस प्यार मोहब्बत से बातें करते रहते हैं। इख्तिलाफात की जो बात होती है वो करते रहते हैं। गाली गलौज नहीं करना चाहिए। किसी को अगर ग्रुप पसंद नहीं आता है वो लेफ्ट हो जाता है। हमें उन्होंने ग्रुप में ऐड किया और हमने अच्छी अच्छी वॉइसें भेजी, उन्होंने बस सिवाय बदतमीजी गाली की कुछ नहीं, तो हम वहाँ से हम खुद लेफ्ट हो गए उनके ग्रुप से। हमने उनसे कहा कि आपको अगर ये ग्रुप पसंद नहीं आता है तो आप लेफ्ट हो जाइए, क्यों गाली गलौज कर रहे हैं? और कोई मसला नहीं है। मसला क्या है? मैंने उनसे ये कहा भाई हम अहले हदीस है, हमारा मसलक अहले हदीस है, और आप अगर बरेलवी हैं, आपका मसलक आपको पसंद है तो आप अपने मसलक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताओ, अपना मसलक फैलाओ। खोला हुआ है यहाँ पे ग्रुप, अपनी बातें करो कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं और ये इस तरीके से सही है, ना कि गाली गलौज करो। बस ग्रुपों में तो सैकड़ों लोग रहते हैं, अपनी अपनी बातें करते ही है। देखिए, बरेलवी जो मसलक है 73 में बरेलवी ही एक मसलक है जो हक पर है। नहीं, आप क्या मसाइल पर क्या गुफ्तगू करने की मुतमन्नी है क्या? हाँ, कर लीजिए ना, आपको जो आसान नहीं, लगे। फोन पे नहीं कर पाऊंगा, मैं दुकान पे बैठा हूँ काउंटर पे। आप अगर इजाजत दे तो आपको हम ग्रुप में ऐड कर ले रहे हैं। आप भी बताइए अपने मसलक के बारे में, हम अपने मसलक के बारे में। यही तो ग्रुप का मजा है। सुनिए, देखिए व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं। असल में देखो मैं आपको बता दूं, फोन कॉल पे मैं बात करता हूँ, मेरी बात नहीं जी। जैसे आप अहले हदीस हैं, ठीक है जी जी जी, तो मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि भाई हमारा 73 में जो 73 फिरका है उसमें एक ही है जो है बरेलवी फिरका, जो 24 ग्रेड गोल्ड है। बाकी अहले हदीस बिदती हैं और देवबंदी बिदती हैं, शिया तो है ही है, कादियानी से कोई लेना देना ही नहीं है ना। अच्छा, ये 24 कैरेट बिल्कुल गोल्ड है। 24 ग्रेड गोल्ड है हजरत, 24 ग्रेड गोल्ड तो है। ये कैसे गोल्ड होता है? उसके दलाइल क्या है? 24 ग्रेड गोल्ड तो सही है, बाकी अहले हदीस नहीं, कहने से क्या होता है? उसके दलाइल भी तो दो। आपके यहाँ ये है कि जमीन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी उछल के चले गए और गेंद से जिस तरह खेला जाता है ऐसे चांद सूरज पे खेले। ये क्या दीन है? आपके यहाँ है, आपके यहाँ है। ये तो एक मिनट बस यहीं फोन पे ये दलाल थोड़ी दे पाऊंगा। आप जब ग्रुप में आएंगे तो दलाल। अब आप सुन लीजिए पहले। नहीं, अब्दुल सुनिए बात सुनिए। 24 ज्यादा दूर मत जाओ। 24 कैरेट गोल्ड आपने कैसे कहा? तो हम आपको बता रहे हैं गोल्ड है क्या है, हम आपको बता रहे हैं ना। ये तो अब मैं आपकी ही तरह ये भी कहूंगा कि आपके यहाँ है तो आप क्या कहोगे? मैं कह रहा हूँ इसी पे रुक जाओ, इसी पे मुकम्मल तबसरा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा कहाँ ये? वो जब ग्रुप में होंगे तब ना स्कैन पेश करेंगे। अभी तो कान में मोबाइल लगा। मतलब आप गूगल से आप निकालोगे? गूगल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास किताब है। गूगल से क्यों? तो किताब मैं बता दूं? किताब का नाम आपके सामने पेश करूंगा। वो भी याद नहीं आपको? मतलब आप झूठ बोल रहे हो। कौन कह रहा है याद नहीं? अब्दुल अजीज, अरे भाई अब्दुल अजीज दब्बाग का किस्सा आपको याद नहीं है? उनका मुरीद अपने बीवी से हम मिस्त्री करा, वो लेटे लेटे देख रहे हैं। अब आप अभी यहाँ किताब का नाम भूल दो। अब्दुल हन्नान साहब, मेरी बात ऐसे बात नहीं होती है। आप बैठ गए फोन करने लगे, ऐसे कोई बात नहीं होती है। अब्दुल हन्नान साहब, मैंने आपसे पहले कहा है कि उसका किताब का नाम बताओ जो आपने कहा है अभी। किताब का नाम अगर हम बता देंगे क्या हो जाएगा उससे? हम तो वहाँ दलील पेश करेंगे ना, वहाँ आप खुद देखोगे, आपसे कहेंगे पढ़ो इसको।
अजीब बात गुरु- है, क्या हो जाएगा कि बात आप तो नाम यही है। बताओगे, आदमी तहकीक करेगा, सब कुछ करेगा। अरे मैंने वाकया वहाँ बता दिया ना, आप ग्रुप अपने में- पूछो बरेलवियों से। नो नो नहीं, अरे हम क्यों पूछे, आप बताएं, आप बताओगे कि हम बरेली जाए पूछे भाई ये कहाँ लिखा है? अरे आपने यही ऐसे ही मलफूजात पहले हदीस बनेगा। मलफूजात पढ़ी है? कौन सा मलफूजात? मलफूजात नहीं जानते आप? इमाम अहमद रजा के बारे में जो मलफूजात है वो पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। उसमें ये वाकया है अब्दुल अजीज दब्बाग का। अब्दुल अजीज दब्बाग का? हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, मुरीद उनका अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहा था और वो बैठे बैठे देख रहे थे। उन्होंने ये कहा कि तूने दूसरी बीवी से हम बिस्तरी क्यों नहीं की? तो कहा वो सो रही थी। तो कहा सो नहीं रही थी, बल्कि वो बनावटी कर रही थी, वो जाग रही थी। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, बल्कि जो भी बरेलवियां हैं, कि ये बताओ क्या आपके पीर हम बिस्तरी देखते हैं जा करके? अच्छा, आप सुन लो। और ग्रुप में जितने बरेलवी लोग मौजूद हैं, किसी की ये हिम्मत नहीं हुई ये कह दे कि ये वाकया झूठा है, क्योंकि किताबों में मौजूद है। अरे अच्छा ठीक है, सुनोगे तो मेरी भी बात तो सुनोगे। आप ग्रुप में आइए अगर आपको शौक है फिर तो। गुरु मैं आपको दिखाता हूँ इतने अच्छे से क्या सुकून के क्यों साथ बरेलवी। बात हो रही है, इतनी सुकून के साथ बात हो रही है। आप नहीं गुरु नहीं, गुरु हम दुकान कर पे रहे हो। बैठे, मेरे सामने रोड चल रहा है। तो इतना हम- बता दिया, कुछ मेरी भी सुनो। नहीं, हम तो सुकून में नहीं। हाँ, आपने सुना तो ये बात सही है, आप अपने हाँ, सुनाओ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए, अव्वलन तो ये कि सूफिया की बात हुज्जत नहीं होती है। इमाम साहबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर सूफिया कोई इबारत या कोई उनका कौलो फेल हो तो वो हुज्जत नहीं है, जो है। और दूसरी बात ये कि आपके गुलाम रसूल एक आलिम गुजरे हैं, ठीक है, किसके? अहले हदीस जमात के क्या नाम है? एक गुलाम रसूल नाम है उनका। कहाँ के हैं? अरे अब कहाँ के हैं, गुलाम रसूल का काफी नाम था उनका। हमें आप और देखिए, सुनो, हम सुनो, अहले मेरी हदीस बात हैं, सुनो। कुरान और हदीस के खिलाफ मेरा कोई अमल हो वो पेश करो। हम अच्छा, कुरान कुरान ने समझते हैं ये आप? कहा, हम मुकल्लिद तो है नहीं, हम इमाम अबू हनीफा कुरान- रहमतुल्लाह की वो तकलीद नहीं करते हैं। कुरान समझते हैं पूरा आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में आप कौन आलिम अब दीन कौन हैं? सी ऐसी आयत है कुरान में जिसपे अमल नहीं करना चाहिए, मुझे बताएं। आप जो है अपने आप को जो है मुस्तहिद के कैटेगरी में मानते हैं तो बताएं, चलिए। ये कौन सा सवाल है? अब आप समझते हैं ना कुरान, आप कुरान अल्लाह और के, हदीस समझने ये कोई वाले हैं। सवाल नहीं है। हाँ, क्यों? अल्लाह ने कुरान को पूरा का पूरा अहकामात पर नाजिल किया। जिस चीज से रोका हमें रोकना और जिस चीज का हुक्म दिया वो अमल करना, बस खत्म। ये कौन सी बात रही आपका? ये कोई सवाल है? कुरान में कुछ ऐसी आयत नहीं है कि आयत से अकीदा नहीं बनाया जाता, या मोटी उसके पीछे नहीं बात पढ़ा एक जाता। मुसलमान के लिए है, पूरी किताब अहकामात पर मुश्तमिल है। उसमें जो अल्लाह ने अब जिस मैं अब्दुल हन्नान साहब आपको कहूँगा कि आप चलो रखो फोन, तुम्हें कुछ नहीं आता सही में जाता। बता रहा हूँ, और कुछ नहीं आता, खाली एक दावा है आपका कुरान और हदीस। हेलो।